Hey guys, very good evening to all of you and welcome to the sessions. Hi and how are you all? कैसे हो तुम लोग? Very good evening to all of you. Once again, welcome back to the session. Myself Harsh Priyam taking today's session of circles. Most important HOTS question. तो कैसे हो तुम लोग और पिछला सेशन कैसा लगा? Just do let me know through the chats and through the live chats and through the comment also. वैसे कमेंट मैंने काफ़ी सारे पढ़े, कमेंट से याद आया. वैसे आते ही आजकल कमेंट पहले सबसे पहले याद आ जाता है कि कमेंट पढ़ना है. और इनफैक्ट अब पता है इस बात की खुशी रहती है, मैं क्योंकि ऐसे मेरे को टाइम मिल नहीं पाता है कमेंट पढ़ने का, तो मेरे को ये बात की खुशी रहती है कि मैं जैसे ही सेशन रिकॉर्ड करूंगा या लाइव जाऊंगा जब भी, तो आई विल बी टेकिंग दोज कमेंट्स. तो वो कमेंट लेने की खुशी रहती है, तो मैं यहाँ आके मतलब आई एम लाइक हैप्पी. ओ वाओ, रिकॉर्ड करना है या लाइव लेना है, अब कमेंट पढ़ने का टाइम मिलेगा. चलो, वेरी गुड इवनिंग. तो फर्स्ट कमेंट जो मुझे अभी दिख रहा है इज ऑफ अंकित कुमार. Sir, I have not learned circle because it's not coming in my midterm in my school, but still I was able to understand some questions. This shows sir's greatness. Oh ho, Ankit, thank you very much. Okay, so thank you. Lunatic is saying, okay sir, from now I will make my time to solve social science. That's very good, Lunatic. यार लेकिन वैसे lunatic this name does not suits good कि बार बार मैं lunatic बोलूँ. मतलब it looks like कि अब मैं किसी को वो दे रहा हूँ, it's derogatorizing something. तो अपना ओरिजिनल नाम, it's better you write your original name, isn't it? Prabhu, the solution which you have sent, that also is very true and you can do it like that also. Okay. Ayush is saying, wow sir, very nice explanation. I got 39.5 out of 40 in your exam, all because of you sir. Thank you very much Ayush, and I'm really happy that you shared so that everyone can see that how dedicated teaching can be in this online platform over YouTube also. So it's a kind of testimony to all of the students, those who are thinking कि नहीं पढ़ाई हो पाएगा या फिर मन नहीं लग रहा है, और those who are not showing their dedication. So those students who still are not showing their dedication, thinking that whether it will work or not, so you can go through the comment of Ayush and many other students in the previous video. They have explicitly mentioned that how much they got and how much benefit they are getting because of this whole series, Umang series, and this online YouTube lectures, which is concurrent every time, happening twice in a week. So this regularity is making them study. And ये मैं काफ़ी बार अपने सेशन में भी कहता रहता हूँ that you should not sit here as you are looking at the movie. नहीं, मैं मूवी नहीं बना रहा हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ. तो you should do one thing, that you should always be here with a pen and copy, try to write down the questions, solve the question. Say for example, if I am giving you some question and you want to practice it, so what you can do, you can pause the video. Even if you are not seeing it live, you can pause the video and again you can solve those questions. ठीक है? तो this can be done and in fact this should be done. तभी रिजल्ट आएगा. एंड आई एम अगेन सॉरी, मैं अभी 2-3 वीक्स के लिए, फॉर 2-3 वीक्स आई वुड नॉट बी एबल टू कम लाइव बिकॉज ऑफ सम हेक्टिक शेड्यूल एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट. तो इसीलिए मैं रिकॉर्ड सेशन ही भेज रहा हूँ आप लोगों को. बट हाँ, मैं रिकॉर्ड सेशन करते हुए भी मैं अज्यूम कर ले रहा हूँ कि अभी तुम लोग क्या कमेंट कर रहे होगे. आई एम वेरी श्योर कि अभी तुम लोग 2 कमेंट तो कर ही रहे होगे पक्का. पहला, हैप्पी बिलेटेड टीचर्स डे, तो उसके लिए एडवांस में थैंक यू. और दूसरा, तुम लोग अभी ये कमेंट कर रहे होगे कि सर मतलब वाई आर यू नॉट लाइव, प्लीज कम लाइव, वी वॉन्ट यू लाइव, एंड सर वाई आर यू टेकिंग ओनली 2 सेशंस. तो अब मतलब इतने बार लाइव आया हूं तो तुम लोग से बात करके अब समझ में आता है कि हाँ तुम लोग कमेंट क्या कर रहे होगे, व्हाट यू वुड बी डूइंग द कमेंट्स. सो आंसर टू बोथ द कमेंट्स. लाइव इसलिए नहीं आ पा रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम शेड्यूल का हेक्टिक हो गया, इसीलिए रिकॉर्ड करके भेजना पड़ा, लेकिन इट्स ओनली फॉर 2-3 वीक्स. उसके बाद फिर से मैं लाइव आ जाऊँगा. दूसरा, अभी भी बच्चे फ़ोन कर रहे हैं मोबाइल पे, टेलीग्राम पे. हाँ, तो और दूसरा क्या मैं बोल रहा था, हाँ टीचर्स डे के लिए थैंक यू वेरी मच. योर विशेस एंड वार्म विशेस. इनफैक्ट दो स्टूडेंट्स हु आर ज्वाइन विथ मी ओवर टेलीग्राम, तो जो बच्चे मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, दे आर ऑल्सो मैसेजिंग मी ओवर टेलीग्राम. सो थैंक यू टू ऑल ऑफ देम, इवन इफ आई एम नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड. हालांकि मैं रिस्पॉन्ड कर लूंगा आज शाम तक, मतलब सबका मैसेज निपटा लूंगा. सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गाइज. एंड दोज हु हैवंट जॉइन्ड द टेलीग्राम ग्रुप, दे कैन यूज दिस. अरे बच्चा परेशान ही हो रहा है, मतलब मान ही नहीं रहा. एंड दोज हु हैवंट जॉइन्ड द टेलीग्राम ग्रुप, सो हाउ टू जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप? ईदर यू कैन यूज द t.me/Vedantu Harsh Priyam. Vedantu Harsh Priyam. So Vedantu Harsh Priyam can work out. So with this you will be able to reach out to me. Okay. Or else if you already have Telegram, so just go in Telegram and write for Vedantu Harsh Priyam. You will be able to search me out. तो तुम मुझसे जुड़ सकते हो.
हाँ अरे हम लोग कमेंट ले रहे थे, बीच में कहाँ भटक गए, सीधा हो जा, अरे यार ये ऑटो रोटेट ना. हाँ, so next is sir please start surface area and volume. So Adiba, I'll be starting surface area volume but not now. Let the time come because surface area volume comes in a later phase. So we'll go according to the this schedule of your midterm exam and मतलब नहीं, it's not schedule of midterm exam, rather NCERT. फिर अंकित is saying क्या मस्त thumbnail है sir, but it is still confusing that how sir can breathe in space without oxygen cylinder. तो अंकित व्हाट वर यू एक्सपेक्टिंग मी टू शो कि मतलब मैंने इधर से स्पेस सूट पहन रखा है और मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर ले रखा है एंड ऑल दोज थिंग्स. यार जितना हो सकता था उतना दिखा दिया. अगली बार ऐसा प्रयास जरूर करूंगा कि कुछ इस टाइप का थंबनेल बनाऊं ताकि जिसमें दिखे कि मैं स्पेस में हूं और इधर से ऑक्सीजन सिलेंडर है, उधर से अपोलो 71 स्पेसशिप है एंड ऑल दोज थिंग्स, इजंट इट. विनायक इज सेइंग ओके, देखो विनायक का कमेंट आ ही गया. हैप्पी टीचर्स डे सर, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू बी योर स्टूडेंट. आई हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट इन मैथ बिकॉज ऑफ यू. थैंक यू सो मच सर. So thank you Vinayak, thank you very much. In fact your comment is really beautiful and before Teachers Day I wasn't expecting that much but still it was expected, so thank you very much. In fact it looks like that yours is the first comment. अच्छा अभी 5 मिनट पहले आया. Kavya is saying thank you for all your help. No one else can teach this subject as well as you do. You are the best teacher. Thank you Kavya, thank you very much. Your comment is really awesome and fantabulous. To the world you may be just a teacher but to me you are a hero. Okay sir, but not at all hard because of your awesome teacher. Harsh Priyam sir, thanks a lot for all of your effort. Thank you very much Kavya, and I am really happy that you wrote out your heart out there in the comment box and everyone would be able to read it out. In fact for Kavya's comment I would be liking it right now only and it's like super awesome, fantabulous comment. Thank you Kavya. Rahul is saying sir how to crack standard paper of mathematics in board 2020. So Rahul, need not to worry, उसी के लिए हम लोग काम करें. So I'll be sharing you a lot of tips and tricks, and apart from that during the exam time we'll be doing many more sprints as what we are doing right now. ये जो अभी sprint चल रहा है ना for your midterm, so in the same way we'll be doing the sprint near your board exams also. तो you will be able to learn. जिज्ञासा is saying sir syllabus ही नहीं हो रहा है खत्म, बचा लो सर, statistics करा दो, आपके सेशंस से ही समझ में आता है, क्लास में सर खुद को ही पढ़ा के चले जाते हैं. बाय द वे हैप्पी टीचर्स डे. यार वैसे पता है लिटरली मतलब अभी ये कमेंट पढ़ के ना मेरे को अपने मतलब अपने पढ़ाई के दिन भी याद आ जा रहे हैं. एंड आई लिटरली अभी मेरे को ऐसी इच्छा हो रही है कि काश तुम लोग अभी लाइव होते तो मैं अभी तुम लोगों से काफ़ी बातें करता हूँ जैसे मैं अपने नॉर्मल क्लासेस में करता हूँ कि कई बार मान लो पढ़ाने की इच्छा नहीं हो रही है तो आई फील लाइक कि चलो ठीक है आज बात करते हैं. और लिटरली ये होता है क्योंकि कई बार मेरे को बच्चे बोलते हैं यार सर स्कूल में तो हमारे टीचर खुद को ही पढ़ा के चले जाते हैं, या फिर कई बार ऐसा कमेंट आता है कि सर हमारे टीचर बहुत अच्छे हैं, वो पूरी कोशिश करते हैं समझाने की बट पता नहीं वो समझा ही नहीं पाते हैं बेचारे सर, ऐसा करके. तो आई गेट दीज कमेंट्स अ लॉट. ये नहीं कहूँगा खुशी हो रही है या दुख हो रहा है, लेकिन हाँ रेजोनेट कर पाता हूँ कि एक्चुअली व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी तो मेरे जो 10th क्लास के जो सर थे उनकी आदत क्या थी, मतलब वो बहुत परेशान रहते थे, पता नहीं क्या परेशानी थी, बीवी से रोज लड़ाई होती थी, क्या होती थी आई डोंट नो, लेकिन ही यूज्ड टू बी लाइक डैम टेंस्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड. तो अगर उनसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा होता था ना तो ही यूज्ड टू बीट, वो स्टूडेंट की पिटाई करते थे. एंड हाउ, से फॉर एग्जाम्पल इफ ही इज सॉल्विंग एंड इफ ही इज नॉट गेटिंग द आंसर तो थोड़ी बहुत आवाज तो होती है क्लास में, मतलब हल्ला होने लगता था, तो ही यूज्ड टू जस्ट टर्न लाइक दिस और उसके बाद जिस पे उनकी नजर पड़ी उठा के उसको मतलब धमाधम मतलब मस्त अच्छे से उसकी इलाज कर देते थे. और उसमें कई उस चपेट में कई बार मैं भी फंसा था. तो आई वाज लाइक आई यूज्ड टू हेट दैट टीचर. मैं बोलता था यार नहीं आता तो बोल दो ना कि नहीं आ रहा है, लेकिन खैर उस वक्त नहीं समझ आता था, बच्चा था, कोई टीचर कैसे बोल देगा, लेकिन खैर ये मैं भी रेजोनेट कर पा रहा हूँ. सो जिज्ञासा आई विल डू दैट. स्टैटिस्टिक्स में प्रयास करता हूँ पहले लेने का बट आई कैन नॉट अश्योर यू क्योंकि स्टैटिस्टिक्स बहुत लास्ट में है, बट फिर भी मैं ट्राई करूंगा. ठीक है. Vedan is saying Vedan Lakshmi thumbnail. Okay, thank you Vedan. Please start coordinate geometry. Okay Sachin, probably शायद coordinate geometry का आसपास का ही नंबर है तो I'll start. Sir please stay with us in 11th and 12th. Okay Ankit, I will. Sir please make video on statistics standard 10. अच्छा statistics का काफ़ी request आ रहा है. It is Adi Anshu 735 all in one sing. Oh my goodness, what a name, great name. Shivam is saying sir please सर प्लीज़ आपने इतने अच्छे हो
प्लीज़ हमारे लिए भी टाइम निकालो और लाइव क्लासेस करो. यू आर फैबुलस प्लस अमेजिंग प्लस कूल equals to fabul amazing cool. Okay, so you have found a new term of Shivam, and I really love this message. In fact काफ़ी अच्छा लगा ये तुम्हारा जो क्या कहते हैं क्या बोलते हैं हार्ड वर्क टुवर्ड्स मेकिंग अ न्यू वर्ड जस्ट बिकॉज फॉर मी. आई एम रियली हैप्पी. यार शिवम, मुद्दे की बात क्या है कि मतलब मैं बिलीव मी, अभी जैसे मैंने बोला ना, अब तुम्हारे कमेंट्स पढ़ता हूँ ना, तो कई बार ऐसा फील होता है कि यार अभी तो मैं तुमको इमेजिन करके, मतलब एक इमेजिनरी वर्ल्ड में मैं सोच रहा हूं कि हाँ तुम लोग अभी कमेंट कर रहे होगे, मेरी बात सुन रहे होगे, चैट दे रहे होगे, बट ये बात मेरे को फील होती है कि काश अगर तुम भी सामने अभी दिख रहे होते और मेरे को रिस्पॉन्ड करते अभी चैट बॉक्स में, यस सर, वाओ सर, यस सर, बिल्कुल लाइव आया करो, तो दैट वुड हैव गिवन मी मच मोर प्लेजर. अभी मैं वो सारी चीजें इमेजिन इसलिए कर पा रहा हूँ, शायद ठीक है मेरा इमेजिनेशन अच्छा होगा ये कह लो, या फिर मैंने तुम्हारे साथ इतना टाइम बिताया है कि आई कीप ऑन सीइंग, लुकिंग एट योर चैट्स, तो मेरे को फील आ जाती है. लेकिन हाँ, अगर कोई और सिचुएशन होता या तुम एकदम नए बच्चे होते तो मेरे लिए भी बहुत मुश्किल होता ये रिकॉर्ड कर पाना. तो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड शिवम. इनफैक्ट मैं भी बहुत ज़्यादा चाहता हूँ कि यार मैं तुम लोगों के साथ लाइव आऊँ, लेकिन क्या करूँ, कुछ और जो कहते हैं ना वो जिम्मेदारियां एज इन वो नहीं कि मतलब बचपन में ही जिम्मेदारी, घर परिवार, बेटी की शादी, ऐसा नहीं है. जिम्मेदारी एज इन कि बहुत सारे क्लासेस रहते हैं. अब वो जो लाइव क्लासेस हैं, जिन बच्चों ने वेदांतो कोर्सेज को पे किया है, उनके साथ लाइव आना ज़्यादा ज़रूरी है. पहली जिम्मेदारी वहाँ आती है. दूसरा, बहुत सारे सेशंस लगे रहते हैं जो पेड कोर्सेज हैं, तो उन पे थोड़ा सा ज़्यादा वो रहता है. यूट्यूब का सेगमेंट बाद में इसलिए आता है क्योंकि यूट्यूब पे हम लोग लाइव वो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, लेकिन वेदांतों का प्लेटफॉर्म जहाँ हम लोग पढ़ाते हैं, जो हमारा अपना प्लेटफॉर्म है, उस पर रिकॉर्ड करके नहीं भेज सकते हैं, उस पर लाइव ही जाना पड़ेगा. तो वो थोड़ा सा फाइट हो जाता है. तो बट स्टिल मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं नहीं आऊँगा. इनफैक्ट काफ़ी मज़ा आता है तुम लोगों के साथ. इनफैक्ट ओवरऑल सब बच्चों के साथ मज़ा आता है. जो बच्चे हमारे लाइव सेशन में आते हैं उनके साथ भी, तुम्हारे साथ भी बहुत मज़ा आता है. तो मैं प्रयास ज़रूर करूँगा, हमेशा करता हूँ कि तुम लोग के साथ लाइव आऊँ. इनफैक्ट तुम लोगों की अगर छुट्टी होती या फिर जैसे 11-12 में करते हैं ना डमी कैंडिडेट, तो अगर तुम लोग डमी कैंडिडेट होते तब तो हर रोज़ लाइव लेता. सुबह आ जाता मैं 12-1 बजे के आसपास और रोज़ लाइव लेता. लेकिन खैर नहीं हो पा रहा, कोई दिक्कत नहीं है. हाँ, अगला क्या है, अंकित कुमार इज सेइंग सर आपके लिए एक दिन तो क्या बरसों रुक जाएंगे, बट सर प्लीज कम लाइव एज सून एज पॉसिबल. अरे बाप रे बाप यार अंकित भाई, ओके ठीक है, तुम्हारे लिए भी कट कॉपी पेस्ट आऊंगा, जरूर आऊंगा, ठीक है. सर यू हैव गिवन ग्रेट क्वेश्चन. ओके, थैंक यू राहुल. प्रत्युष इज सेइंग सर प्लीज स्टार्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ओके प्रत्युष. Kishank Dubey, sir your mustache is looking good. Okay Krishank, thank you. You are the first guy who is praising my looks. In fact, otherwise everyone was saying sir previous Tony Stark look was much more better. तो वो टोनी स्टार्क बना दिया मेरे को. चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट श्यामजी शुक्ला. आई एम आशुतोष. वेरी नाइस वीडियो सर. थैंक यू श्यामजी. थैंक यू आशुतोष. थैंक यू फॉर स्टार्टिंग सर्कल. इट्स ओके टेक्निकल 8. सर प्लीज हमारे लिए भी टाइम निकालिए और लाइव आइए प्लीज. मिसिंग योर लाइव अ लॉट प्लीज सर. आस्था, आई एम ऑल्सो मिसिंग यू ऑल किड्स वेरी मच बाई डीप ऑफ माई हार्ट. इनफैक्ट मेरे को सबके कमेंट्स अभी याद हैं. शिवम यूज टू कमेंट देयर, कनन यूज टू कमेंट देयर, दिशा, फिर आस्था, यू, टेक्निकल 8 SMS, राहुल. मतलब मेरे को तो अब बच्चों के नाम याद हो गए. अब वैसी वाली फीलिंग आ रही है जैसे अपना रहता है ना क्लास की, हाँ 4-6-8 महीने पढ़ा लिया तो फिर अब बच्चों से कनेक्ट हो गया. तो नाउ आई एम गेटिंग दैट फीलिंग कि हाँ तुम बच्चे वहां रहते हो और तुम लोग मेरे को कमेंट करते हो. वो फील मैं भी मिस कर रहा हूँ, बिलीव मी, बहुत ज्यादा. आता हूँ, जल्दी से जल्दी आता हूँ, ठीक है. नहीं होता है तो प्रयास करता हूँ किसी दिन संडे सैटरडे का कुछ प्लानिंग कर लेंगे, ठीक है. जैसे ही जब भी फ्री होता हूँ करूंगा जरूर, ठीक है. सर क्या आप BIT भिलाई दुर्ग छत्तीसगढ़ से पढ़े हैं? बिल्कुल शिव, मैं वहीं से पढ़ा हूँ. बट हाउ डिड यू कम टू नो? अच्छा, वैसे काफ़ी जगह मेरे सारे प्रोफाइल में लिखा हुआ है. हाँ, मैं छत्तीसगढ़ BIT दुर्ग से पढ़ा हूँ. काफ़ी अच्छा जगह है. तुम भी वहीं के हो गया? ओके. सोना इज सेइंग सर इट वाज नॉट इन हाफ ईयरली. इट वाज नॉट इन हाफ ईयरली. ओके, मे बी सोना, डिपेंड्स ऑन स्कूल टू स्कूल. बंटी राम, सर एक बात बताऊं. ये क्या हो गया? ये क्यों बुरा मान गया? ऐसा लगता है ये भी मतलब चाह रहा है कि जल्दी जल्दी करो यार हर्ष भाई, क्यों परेशान कर रहे हो. अच्छा ठीक है, करते हैं यार. ये चैट पढ़ने में मज़ा आने लगता है तो फिर मैं टाइम को भूल जाता हूँ. चलो जल्दी जल्दी करता हूँ. उसके बाद क्या है, बंटी राम सर एक बात बताऊँ, मेरे सर मेरे को मैथ्स को लेके बहुत जज करते हैं, बट मैं क्या करूँ सर. SST, साइंस, इंग्लिश, हिंदी और अदर सब्जेक्ट भी तो पढ़ना पड़ता है ना सर. टाइम मैनेज नहीं होता सर, मैं क्या करूँ. आई एम इन अ सीरियस सिचुएशन.
बंटी राम, डोंट बी इन अ सीरियस सिचुएशन यार, नॉट एट ऑल। सर को बोलो कि सर टेक अ चिल पिल, ठीक है, आपको जज करना है आप करते रहो, कोई हमें फर्क नहीं पड़ता, मैं जिस स्पीड से पढ़ रहा हूं उसी स्पीड से पढ़ूंगा और मेरे को पता है एग्जाम कैसे निकालना है। एग्जाम में आपको तो खुश करना नहीं है, ठीक है, तो अगर उनको खुश नहीं करना है तो फिर ठीक है, अपने स्पीड से पढ़ते जाओ। यू आर शुड बी कॉन्फिडेंट कि हाँ तुम्हें 70 नंबर चाहिए, 60 नंबर, 80 नंबर, कितने चाहिए। सो इफ यू आर फीलिंग कि हाँ बाय दिस मच स्टडी यू विल बी एबल टू गेट 80%, 90% एंड यू आर सेटिस्फाइड विद दैट, गो अहेड विद दैट। डोंट केयर अबाउट एनीवन, नॉट इवन एनी टीचर्स। देखो ये उनका पर्सनल बायस। अब ठीक है, मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूं तो हो सकता है मैं बोलूं कि यार मैथ्स पढ़ ले, मैथ्स पढ़ ले, क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट है। बट अगर तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है बाकी सारे को कवर करके और मैथ्स उतने में तुम्हारा मैनेज हो रहा है, गो हेड विद दैट। सर को बोलो कि सर ओके ठीक है कोई बात नहीं। सर को बोलना मतलब अपने मन में बोलना कि यार अब हो गया, सर का उम्र हो गया, अब इस उम्र में थोड़ा सा खिच तो चलती है, तो बोलना ठीक है चलो यार बूढ़ा इंसान है, बोल लेने दो, ऐसा करके। हाँ उनको मत बोल देना, नहीं तो मतलब लंका लगा देंगे वो तुम्हारी। ओके आस्था, ओके सर ट्रायंगल्स कब होगा? जल्दी होगा सर। बीएड का क्या हुआ? यार बीएड को मैंने दान कर दिया कनन। सुपर ऑसम, थैंक यू अमरेंद्र। प्रत्युष सर क्वेश्चन 1 और 2 समझ नहीं आया। ओके प्रत्युष एक बार दोबारा से रिकॉर्डिंग देख लो, अगर फिर भी नहीं आता तो मेरे को कमेंट करना। नीतीश हाय सर बीएड का क्या हुआ? हिमांशु दान कर दिया। अमन रंजन सर कॉन्ग्रेट्स, यू विल गेट इट आफ्टर यू फिनिश रीडिंग द कमेंट। In the session, you mentioned about education system in America and Europe. I had studied in USA up to 7th grade and know that it is not true. I may be in Europe, but I don't know about that. I had the option to choose my extra subject and I choose advanced math. I got to learn a bit, only a bit, about imaginary numbers, log and other interesting things. Aman Ranjan, I am not able to correlate with that with which comment or with which session you are correlating this comment, but still अगर अच्छा है तो थैंक यू, अगर बुरा है कुछ तो भी थैंक यू, ठीक है चलता है। और वैसे मैं देखूंगा, प्रयास करूंगा याद करने की कि कौन से सेशन में मैंने क्या बोला था जिसके लिए तुमने ये कमेंट दिया है। ओके सो एनीवेज कमेंट खत्म हो गए, थैंक यू वेरी मच। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द कमेंट्स, आई रियली लव्ड इट एंड एंजॉयड इट रीडिंग इट आउट। मतलब ऐसा लगता है काफी मजा आ रहा है इसको पढ़ने में, और ऊपर से इमेजिन करके तुम लोगों को कि तुम लोग अभी चैट दे रहे होगे या फिर क्या फील कर रहे होगे। आई कैन लिटरली यू नो तुम्हारे फेसेस मेरे को नहीं पता है, नहीं तो मैं तुम्हारे फेसेस के साथ तुमको इमेजिन कर लेता। मेरा इमेजिनेशन बहुत खतरनाक है, इसीलिए शायद ज्योमेट्री अच्छी बनाता हूं। एनीवेज चलो तो चलते हैं, शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट सर्कल्स 2, ऑल द HOTS क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो लेट्स सी, हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग समथिंग लाइक दिस। In the given figure, from a point P, two tangents PT and PS are drawn to a circle with center O such that SPT equals to 120 degree. SPT 120 degree, okay. Prove that OP equals to 2PS. OP equals to 2PS, okay. ठीक है, देखो एक बार मैं एक चीज डायरेक्ट लिख रहा हूं, प्रूव नहीं करूंगा कि ये जो ट्रायंगल है OPT एंड ट्रायंगल OPS विल बी कॉन्ग्रुएंट। मैं ये बता इसलिए नहीं रहा हूं बिकॉज इजिली प्रूव हो जाएगा। यू विल बी एबल टू प्रूव दैट tangents are of equal length from external point, radius equal and 90 degree equal, so they will be congruent. So if they are congruent, so I am writing the properties first. Angles will be equal, isn't it? तो angle SPT is given 120 degree, मतलब ये पूरा P angle 120 degree है, तो अगर हाफ हाफ में बांटा तो 60 okay, so this is 60, this is 90 degree, so this is 30 degree, okay, so and this is also 30 90। अच्छा अब ध्यान दो, यहां तक की बात तो हो गई, अच्छी बात है। अब आगे क्या प्रूव करना है? आगे हमें करना है कि OP इक्वल्स टू 2PS प्रूफ करना है। तो OP इक्वल्स टू 2PS प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे? देखो पता नहीं क्या करेंगे। लेट्स ड्रॉ अ ज्वाइनिंग लाइन, इनको ज्वाइन कर दिया। एक बात बताओ, जस्ट टेल मी वन थिंग, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दैट एंगल O इज 60 डिग्री 30 एंगल O क्या है? 60 डिग्री। अब अगर एंगल O 60 डिग्री है, मैं इस ट्रायंगल को बाहर निकाल रहा हूं, प्लीज पे अटेंशन, आई एम जस्ट टेकिंग आउट दिस ट्रायंगल, दिस इज O, दिस इज T एंड दिस इज S, ये OTS को। तो ये वाला पूरा एंगल क्या है? 60 डिग्री है। अगर ये पूरा एंगल 60 डिग्री है एंड OT एंड OS इज रेडियस, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का कंडीशन है इस एंगल को x मानोगे, इस एंगल को x मानोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी से you will be able to find that this is also 60, this is also 60। तो ये बन गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या बन गया? इक्विलैटरल ट्रायंगल। काम हो गया तुम्हारा, काम हो गया भैया। इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया जैसे ही, तो नाउ यू वुड बी एबल टू फाइंड आउट दैट TS इज ऑल्सो इक्वल टू OT। हाँ, TS इज ऑल्सो इक्वल टू OT।
अब तुम्हें प्रूफ करना है ओपी के बारे में, ठीक है। तो ओपी के बारे में तुम कैसे प्रूफ करोगे? 2PS, ठीक है, तो प्रूफ कर दो ना, बहुत आराम से प्रूफ कर दोगे। बता दूं? देखो बता देता हूं। डू यू नो दैट इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट हैज अ फॉर्मूला? से फॉर एग्जांपल आई एम नेमिंग दिस एज के। इस पॉइंट को प्लीज लुक एट इट, मैं इस पॉइंट को के मान रहा हूं। तो इफ दिस इज माई पॉइंट विच इज के, तो डू यू नो द वैल्यू ऑफ ओके? ओके की वैल्यू पता है क्या? ओके की वैल्यू होती है √3/2 इंटू साइड, √3/2 इंटू साइड। साइड को मैं रेडियस मान लेता हूं, लेट्स अज्यूम दिस एज रेडियस, तो इसको मैं रेडियस मान लेता हूं, ठीक है। अच्छा, तो भैया एक बात बताओ मेरे को, कि ओके इज इक्वल्स टू ओके इज इक्वल्स टू √3 इंटू 2 रेडियस। ये होता है फॉर्मूला। अगर तुम्हें नहीं पता तो यू कैन इवन अप्लाई हियर ट्रिग्नोमेट्री से भी ओके निकल जाएगा, और नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्लास 9th में पढ़ना होता है, हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/2 इंटू साइड लेंथ। तो साइड लेंथ यहां पे क्या है? ओके, साइड लेंथ यहां पे OS या OT जो भी ले लो, ये रेडियस के बराबर है, सब रेडियस के बराबर है। तो मेरे को ओके की वैल्यू पता चल गई। देखो ओके की वैल्यू पता चल गई। वैसे मैंने ओके निकाला क्यों है वो बताता हूं। देखो मैं कुछ दूसरे तरीके से बता रहा हूं, मैं प्रूविंग नहीं बता रहा हूं, मैं वो कॉन्ग्रुएंसी नहीं बता रहा हूं, कुछ अलग तरीके से बताता हूं। अरे क्या हो गया, क्यों बुरा मान रहे हो? हाँ, तो एक बात ये बताओ कि मुझे ओपी और पीएस में रिलेशन चाहिए, तो ओपी और पीएस में रिलेशन निकाल देते हैं ना यार, क्या दिक्कत है? ओके, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ओके। ऐसा बताओ, मैं एरिया लिखना चाहता हूं, एरिया। तो मैं इसका एरिया इसको डबल कर देंगे, इस तरीके से तो नहीं निकल रहा। OP इक्वल्स टू 2PS, OP 2PS। तो अरे देखो, इतना करने की जरूरत नहीं, थोड़ा आसान कर लेते हैं। इसको ऐसा कर लो, यहां से ज्वाइन करा दो इसको, ठीक है। इसको अगर यहां से ज्वाइन करा दिया तो अब क्या होगा वो समझो। ये है 90 डिग्री, यू हैव दिस 90 डिग्री। मैं इस ट्रायंगल को बाहर निकाल लेता हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट OSP। देखो OSP, ठीक है। तो वी हैव टू डू समथिंग बिटवीन OP एंड PS। तो ऐसा करो, यहां से इसका मिड पॉइंट ले लो और मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दो। तो से फॉर एग्जाम्पल दिस इज M, मान लेते हैं इसको M। तो अगर इसको M माना और ये मिड पॉइंट है, तो अब इसको प्रूफ कर पाओगे क्या? आई गेस प्रूफ कर लोगे, ज्यादा टफ नहीं होगा। कैसे प्रूफ करोगे वो भी समझ लो। देखो ये वाला एंगल तो निकल चुका है, ये एंगल कितना आया है? 30 आया था आई गेस, हाँ। तो दिस इज 30, तो ये 30 है। अगर ये 30 है तो मेरे को बता दो जल्दी से, ये 30 है, ये 90, ये 60 होगा। और अगर ये 60 है, और देखो ये मिड पॉइंट है, तो दिस एंड दिस साइड इज इक्वल। और दूसरी बात क्या कि ठीक है, तो कुछ सिमिलैरिटी वगैरह लगेगा क्या? क्या कहते हो? कुछ तो लग ही जाना चाहिए। अच्छा, लग जाएगा यार, लेकिन लंबा जा रहा है, सॉरी फॉर दैट, कोई और तरीका मिल नहीं रहा है, लंबा ऐसे जा रहा है। ये शायद तुम लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं बता देता हूं। इसको एक्सटेंड कर दो। इफ यू डू द एक्सटेंशन पार्ट, अगर एक्सटेंड करोगे, ये कंस्ट्रक्शन किया मैंने, इसको आगे एक्सटेंड कर दिया। लेट्स नेम इट क्या, K, या कुछ और डाल दो, N डाल दो, N डालो। तो आई हैव जस्ट एक्सटेंडेड इट सच दैट कि ये वाला साइड एंड दिस साइड बिकम्स इक्वल। तो माई कंस्ट्रक्शन स्टेप मैं यहां लिख दे रहा हूं, कंस्ट्रक्शन किया हूं मैंने यहां पे। कंस्ट्रक्शन इज दिस कि Mn इक्वल्स टू MS, Mn इज इक्वल टू MS, ऐसा कंस्ट्रक्शन किया है। अगर मैंने कंस्ट्रक्शन किया है ना, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये दोनों ट्रायंगल ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये दोनों छोटे छोटे। साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड, यहां पे भी साइड एंगल साइड, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुए,
as soon as they are congruent, I will be able to write कि this side is equal to this side. और मैंने जैसे ही लिखा कि ये दोनों साइड इक्वल होंगे, मैं लिखूं कि समझ में आ रहा है, देखो बताते चलना, अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो प्लीज पॉज द वीडियो, राइट डाउन मैं क्या क्या लिख रहा हूं. मैंने अभी अभी लिखा है ट्रायंगल NMP इज सिमिलर टू कॉन्ग्रुएंट टू SMO. NMP कॉन्ग्रुएंट टू SMO, ये लिख जरूर लेना अपने कॉपी में. जैसे ही कॉन्ग्रुएंट किया तो नाउ आई कैन राइट NP इज इक्वल टू OS CPCT. NP इक्वल्स टू OS CPCT से जैसे ही ये दोनों इक्वल हुए, अब नाउ आई वुड बी एबल टू डू वन मोर थिंग. पता है क्या वन मोर थिंग? दैट वन मोर थिंग वो ये होगा कि आई वुड बी एबल टू राइट, बता दूं क्या, इक्वल हाँ जैसे ही दोनों इक्वल हैं तो दिस एंगल इज गोइंग टू बी इक्वल टू दिस एंगल. अगेन CPCT, क्योंकि देखो ना यहां पे NMP लास्ट एंगल इज P एंड हियर लास्ट एंगल इज O. तो देखो NMP और यहां SMO, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे. इक्वल करने से मेरा फायदा क्या हुआ, व्हाट इज माय बेनिफिट, कि ये 90 डिग्री हो गया, 60 30 90, और ये तो 90 डिग्री था ही, ये तो पहले से 90 डिग्री था, तो 90 90 एंगल इक्वल हो गए. ये देखो ये साइड और ये साइड बराबर है और PS कॉमन है. समझ में आया क्या मैं क्या लिखना चाह रहा हूं? मैं लिखना चाह रहा हूं ट्रायंगल NPS इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, देखो NPS कॉन्ग्रुएंट टू OSP. और रीजन क्या है? रीजन है कि NPOS इक्वल, तो एक साइड इक्वल, ये बीच का एंगल इक्वल 90 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, और ये PS एंड PS इज कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल्स. तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. अब जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ, वैसे मैंने इतनी राइम कहानी, क्या हो गया, क्यों बुरा मान गया ये क्यों बुरा मान जाता है यार? हाँ, मैंने इतनी राम कहानी जो भी की है वो क्यों की है, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ वन थिंग, कि अब मैं यहां से लिखूंगा कि अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं साइड एंगल साइड से, तो नाउ आई कैन राइट NS इज इक्वल टू, बता दो, NS इज इक्वल टू OP. NS OP के इक्वल हुआ तो यू नो NS, व्हाट इज NS? NM और प्लस MS दोनों इक्वल है ना, देखो ये NM और MS इक्वल है, तो ये NS को मैं लिखूंगा 2 टाइम्स MS. जैसे ही मैंने 2 टाइम्स MS लिखा इज इक्वल टू, यहां पे हो गया क्या, OP को मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स PM. ठीक है, तो 2 कैंसिल हो गया, MS PM के इक्वल आ गया, MS ये वाला पार्ट इसके इक्वल आ गया, और सिमिलरली ये वाला पार्ट इसके भी इक्वल हो जाएगा. सिमिलरली ये 2 PM के जगह पे 2 OP भी, OM भी तो लिख सकते थे, 2 OM. देखो ये थोड़ा सा समझने में मुश्किल होगा, तो पॉज कर करके समझ लेना, एक बार में शायद ना समझ में आए. और एक बात और बताता हूं, हो सकता है कि इसका एक इजी तरीका भी हो, क्योंकि मेरे को जहां तक याद आ रहा है कि इसका एक इजी तरीका होता है, अभी ध्यान में नहीं आ रहा है इसलिए नहीं बता पा रहा हूं, क्योंकि पता नहीं वो ध्यान से उतर गया है. या तो खोजने बैठूंगा तो फिर वो लंबा वीडियो खिंच जाएगा, नहीं तो मैं कभी किसी सेशन में बता दूंगा यार, चिंता नहीं करो, बता दूंगा, आता है. अभी बस ध्यान नहीं आ रहा है, तो इसलिए मेरे को ये लंबा तरीका लेना पड़ रहा है. नहीं तो इसका एक छोटा तरीका होता है. कहाँ मैंने देखा था, शायद कहीं तो देखा था, RS नहीं, एग्जाम्पलर में या RD शर्मा में कहीं देखा था. इसका एक छोटा तरीका, RD शर्मा में तो नहीं छोटा तरीका था, RS अग्रवाल में शायद होगा, मेरे को ठीक से ध्यान नहीं है, मैं बता दूंगा तुमको, ठीक है, चिंता नहीं करो. तो ये तीनों इक्वल हो गए, जैसे ही इक्वल हुए तो फिर सारी चीजें हटा दो, मिटा दो, और मैं बताता हूं अब क्या करना है. अब तो आंसर आ गया सिंपल. जैसे ही ये तीनों चीजें इक्वल हो गई, तो इसका मतलब ये कि मैंने यहां से यहां एक मिड पॉइंट ज्वाइन किया, ठीक है. ये मिड पॉइंट जैसे ही ज्वाइन किया इसका, ये मिड पॉइंट क्या हुआ कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है. देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हुआ क्या, यहां से ये सब मिटा देता हूं, छोड़ो दोबारा बनाते हैं. हाँ, तो मैंने क्या किया है, मैंने यहां से एक मिड पॉइंट ज्वाइन किया, और दिस मिड पॉइंट इज कमिंग इक्वल टू दिस. तो ये तीनों आपस में इक्वल हो गए. तो फिर काम बन गया, हमें यही प्रूफ करना था. देखो दिस इज PS O, तो दिस इज इक्वल टू दिस. तो यहां से यू विल बी एबल टू प्रूव कि ये जो
वैल्यू है ना OM जो हमने लाया था ये OS के इक्वल हो रहा है, और तब ये तुम प्रूव कर लोगे कि ये 2PS हो जाएगा। देखो थोड़ा सा फाइट है इसमें, और मैं इसको शायद अभी अच्छे तरीके से बताया नहीं हूँ, दैट आई कंप्लीटली अग्री। तो अगर मैं अभी अच्छे तरीके से नहीं बता पाया हूँ तो कोई बात नहीं, मैं दूसरे वीडियो में बता दूंगा, पक्का बता दूंगा, डोंट गेट वरीड, इस क्वेश्चन को बता दूंगा। लेकिन हाँ, जिनको समझ में आ गया होगा अच्छी बात है, नहीं तो ये चूंकि थोड़ा सा लंबा हो गया था, तो जिनको नहीं समझ में आया डोंट गेट वरीड, नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बता दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लेना। और ये इतना इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं सीधा कहता क्या कि उसको काट दो, लेकिन मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं यार जो मेरे ही भरोसे बैठे हैं। मतलब अभी ये जैसे आस्था ने बताया कि सर मेरे स्कूल वाले तो मतलब बहुत बेकार हैं, ऐसा वैसा, तो मतलब ठीक है, तो फिर चिंता नहीं करो, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, बता दूंगा इस क्वेश्चन को अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी पढ़ो। इन द गिवन फिगर सर्कल इज इंस्क्राइब्ड ट्रायंगल ABC टचेस कुछ लिखा हुआ है। इफ द लेंथ ऑफ साइड BCCA आर 12, 8, BCCA इज 12 and 8 सेंटीमीटर। अच्छा नहीं, AB BCCA 12, 8, 10 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ ADBECF। ADBECF नहीं पता मेरे को, देख लो, कर लेते हैं कुछ। इसमें लिखा हुआ क्या है, ABBCCA, तो AB इज 12, तो दिस इज 12, BC 8 और AC इज 10, तो ये 10 है। अच्छी बात है। देखो कुछ बताने की करने की कोशिश करते हैं। वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ ADB वगैरह वगैरह। तो आई डोंट नो द लेंथ ऑफ AD, तो AD का लेंथ सबसे पहले मैं मान लेता हूं X। तो इफ आई अज्यूम दिस लेंथ एज X, एक बात बताओ, अगर ये पूरा 12 है, कंप्लीट इज 12 एंड दिस इज X, सो दिस विल बी 12 माइनस X। ये तो समझ में आ रहा होगा, अब इसमें मत बोल देना सर डाउट है। हाँ, तो ये 12 माइनस X हो गया। नाउ आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दैट इफ दिस इज 12 माइनस X, then this B will also be 12 minus X. Why? From an external point, tangent is of equal length always. So B will be equal to BD. तो अगर this is 12 minus X, so this is also 12 minus X. अच्छी बात है। Now, you all know that this complete should be equal to 8. And this B is 12 minus X. तो तुम क्या करोगे CE निकालने के लिए? Simply CE will be equal to 8, which is complete, minus B which is 12 minus X. तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो, ये आएगा शायद 4, नहीं, X minus 4, if I am not wrong, this is X minus 4, ठीक है, तो X minus 4 आ गया, सही निकालो ना, हाँ, X minus 4. Now CE which is X minus 4 will be equal to CF. CE जो है वो CF के बराबर होगा, तो ये भी X minus 4 आ गया। अच्छी बात है। तो अगर ये भी X minus 4, ये भी X minus 4, तो अब ये X minus 4 है। Now this is complete 10, ये पूरा का पूरा 10 है, दिस इज कंप्लीट 10। तो AF की वैल्यू क्या होगी, तो AF फिर से निकाल सकते हो बड़े आराम से। AF की वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस X माइनस 4, तो 10 माइनस X माइनस 4 करोगे तो आई गेस ये आ जाएगा 14 माइनस X, इजंट इट, ये आ गया 14 माइनस X, ये हो गया AF का वैल्यू। अब एक बात साफ साफ तुमको दिख रहा होगा दैट AF एंड AD शुड ऑल्सो बी इक्वल। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट टेंजेंट लेंथ शुड बी इक्वल, तो AD शुड बी इक्वल टू AF। तो ये AD के इक्वल होना चाहिए। AD क्या है? AD हमने स्टार्टिंग में ही X माना था, मीन्स X शुड बी इक्वल टू 14 माइनस X। X को उधर भेज दो, आंसर आ जाएगा 14 इक्वल्स टू 2X, तो 7 आ गया X की वैल्यू। X की वैल्यू 7 आ गई तो AD BE CF सारे निकल जाएंगे, बस एक X ही अननोन था यहाँ पे। समझ आया क्या? ये तो काफी आसानी से समझ में आ गया होगा, आई नो दैट। नहीं, मैं अच्छा पढ़ा लेता हूँ कभी कभी नहीं, हमेशा ही पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन वो क्या कहते हैं, कुछ क्वेश्चन में कभी दिमाग काम नहीं करता है। और वैसे ये मैथमेटिक्स में मेरे को लगता है हमेशा होता है। बच्चे मेरे पास कई बार आते हैं कि सर आप ऐसा दिमाग चला लेते हो, व्हाट वी शुड डू कि हमारा भी दिमाग ऐसा चले। तो यार देखो, जरूरी नहीं तुम्हारा भी कभी दिमाग चलता होगा, कभी नहीं चलता होगा, और वो फ्रीक्वेंसी मेरी थोड़ी ज्यादा है, तुम्हारी कम है, इसलिए क्योंकि मैं थोड़ा ज्यादा चलाता हूं, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस के आसपास आता हूं, आई कम अक्रॉस मेनी क्वेश्चंस, आई सॉल्व मेनी क्वेश्चंस, सो दैट्स व्हाई दैट फ्रीक्वेंसी इज मोर हियर and less in yourself, but it is not like that you are not able to apply that brain. If you will be giving more time to mathematics and if you will be paying more attention to it, तो your brain will also keep on running like that. In fact, मैंने कई ऐसे बच्चे मैंने खुद पढ़ाए हैं जो बच्चे मेरे से ज़्यादा तेज दिमाग चला पाते हैं, एंड आई एम रियली हैप्पी। मतलब मैं उन बच्चों को पढ़ा के मेरे को काफ़ी खुशी मिलती है, क्योंकि वो बच्चे शायद मेरे से भी ज़्यादा टाइम देते हैं और उनके लिए मैथ्स मेरे से भी ज़्यादा फेवरेट है।
और ये कहने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है मैं मैथ्स का टीचर हूँ, मेरे को मैथ्स पसंद है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं ही सबसे बड़ा तोप हूँ और मेरे से ज़्यादा काबिल कोई हो ही नहीं सकता। बहुत सारे मेरे से काबिल हैं, इनफैक्ट काफ़ी सारे बच्चे मेरे को काफ़ी कुछ सिखा देते हैं, तो तुम भी वैसा बन सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पता नहीं मैं इतना ज्ञान क्यों देने लगा हूँ आजकल, हो सकता है। अच्छा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर नहीं किया है तो, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट। अरे यार तुम बुरा क्यों मान जाते हो। हाँ, थर्ड, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स रेडियाई ए एंड बी वेयर ए इज ग्रेटर देन बी, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। देखो कुछ ऐसा ऐसा कह रहा है, ये कहना चाहता है कि एक बड़ा सा सर्कल है और इसके अंदर एक छोटा सा सर्कल है, ठीक है। तो ये जो बड़े वाले सर्कल है ना, ये जो बड़ा वाला सर्कल है, यहां से इसका एक कॉर्ड जो है वो छोटे वाले पे टैंजेंट है। दिस इज व्हाट दिस रेड, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। टचेस मीन्स टैंजेंट, सो लेट्स नेम इट ए बी and they are coincentric, matlab they will be having same center. So from here if I drop the perpendicular, so this is the radius for the smaller one and smaller is B, so B is the radius of the smaller one. Now A is the radius of the larger one, so this is A, ये हो गया A। अच्छी बात है। अब क्या चाहिए हमें, हमें लेंथ चाहिए। तो इतना आसान क्वेश्चन है क्या ये, पता नहीं। तो लेंथ तो निकल गया, लेंथ कैसे निकल गया, पाइथागोरस थ्योरम, दिस इज 90 डिग्री बिकॉज रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट। तो ये 90 डिग्री हो गया, तो ये हाइपोटेन्यूस और ये परपेंडिकुलर, तो बेस क्या आ गया, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें डाउट मत पूछना कि सर ये कैसे आया, इसको अगर नहीं आया तो जब तुम नन्हे छोटे मोटे बच्चे थे तो क्लास 5 की बुक खोलना और इसमें पाइथागोरस देखना। मजाक कर रहा हूँ, 8th में भी होगा पाइथागोरस, 8th 9th में। तो जस्ट लुक एट द पाइथागोरस थ्योरम, ये पाइथागोरस से मैंने किया है, OA स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर टाइप ऑफ, तो इससे आ जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज वन मोर प्रॉपर्टी दैट इफ अ टैंजेंट इज बीइंग ड्रॉप्ड बाय अ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, तो क्या बोल रहा हूं मैं अभी, इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉप्ड ऑन अ कॉर्ड then that bisects the chord in equal part. That is a property of circle. I am again repeating that if a perpendicular is drawn from the center on the chord, then that bisects the chord in equal parts. So if this is root under a square minus b square, so this will also be root under a square minus b square, और पूरी लेंथ आ गई। So this implies AB is equals to 2 times root under a square minus b square, वैल्यू आ गया। समझ आया क्या, आसान था, ज्यादा टफ नहीं था। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड, कूल। यार लाइव चैट जरूर भेजते रहना, पढ़ के मजा आता है, ठीक है। कोई ये बोलता है, कोई वो बोलता है, फिर कोई कुछ। पिछले में लाइव चैट में आई वाज जस्ट लुकिंग एट, कोई तो था, नाम नहीं याद है, सो ही वाज सेइंग जय पबजी जय पबजी, कोई है क्या यहाँ पे पबजी खेलने वाला। और फिर कई बार ऐसे भी आते हैं, नेहा आर यू देयर ऑन द फेसबुक, कैन यू गिव मी योर ID। मतलब वो बच्चे कुछ ऐसे आते हैं जो मैथ्स पढ़ने के लिए नहीं आते, नेहा या सिमरन किसी का ID लेने आते हैं। मतलब बढ़िया है यार, चलने दो, ये भी अच्छा है। एनीवेज, वैसे पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, ये सारी चीज़ें मतलब बहुत टाइम है। कॉलेज में क्या करोगे, हैं कॉलेज में पढ़ता तो है नहीं कोई, तो यही सब होता है। अभी पढ़ लो, अभी लिटरली सबसे ईमानदारी से पढ़ने का टाइम 12th तक का होता है, क्योंकि तब तक तुम घर में रहते हो मम्मी पापा के पास, तो उस वक्त सबसे ज़्यादा ईमानदारी से पढ़ाई होती है। और इसलिए लिटरली बता रहा हूँ, अभी पढ़ाई कर लो। ये सब में क्या रखा है, कुछ नहीं रखा है यार। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है देख लो। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ लिखा है, इन फिगर O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, PT एंड PQ आर टैंजेंट्स। PT PQ टैंजेंट्स हो गए, PT PQ टैंजेंट्स आर टू द सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट if TPQ is 70 degree, TPQ is 70 degree, this angle is 70 degree, we have to find TRQ, ये वाला एंगल चाहिए, ठीक है। तो let's see how to find this। देखो क्या क्या कह रहा है यहां पे, for here to solve this particular question, एक काम कर लेना, वो काम ये कर लेना कि अच्छा, सबसे पहले देखो इस एंगल को, if I assume this angle as X, I can assume this angle as X. Now if this angle is X, then you need to join this point. इन दोनों को ज्वाइन कर दो। I am going to use here alternate segment theorem. Alternate segment theorem
क्या होता है वो बता देता हूं। पिछले सेशन में बताया था मैंने, पिछले सेशन में ये बताया था कि अगर एक सर्कल है एंड इफ देयर इज अ टैंजेंट एंड दिस टैंजेंट टच पॉइंट, कॉन्टैक्ट पॉइंट्स फ्रॉम ऑफ द टैंजेंट फ्रॉम हियर देयर इज अ कॉर्ड ड्रॉन। तो ये जो कॉर्ड है, दिस कॉर्ड विल बी मेकिंग एन माइनर एंगल एंड अ मेजर एंगल। तो ये माइनर एंगल अगर x मानूं इसको, इफ आई अज्यूम दिस एंगल माइनर एंगल एज x, देन दिस कॉर्ड विल मेक अ एंगल इन द मेजर सेगमेंट। देखो सर्कल के मेजर सेगमेंट में एक एंगल बना रहा है, तो मेजर सेगमेंट में जो एंगल बनाएगा ये भी x होगा। दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। दोबारा बताता हूं, अगर इफ दिस इज अ कॉर्ड, दिस कॉर्ड इज मेकिंग एन एंगल x, माइनर एंगल विथ द टैंजेंट। माइनर मतलब एक ये छोटा एंगल है, ये बड़ा एंगल है, तो ये जो छोटा एंगल x है, ये छोटा एंगल माइनर एंगल विल बी इक्वल टू द एंगल मेड बाय द सेम कॉर्ड इन द मेजर सेगमेंट। तो यहां का माइनर यहां के मेजर के बराबर होगा। सो दैट इज वाई वी कॉल्ड इट ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो वही सेम कंसेप्ट यहां पे भी लगाऊंगा। वो सेम कंसेप्ट क्या है देख लो, कि दिस इज अ टैंजेंट और दिस इज अ कॉर्ड। तो दिस कॉर्ड इज मेकिंग स्मॉल एंगल, दिस माइनर एंगल x. नाउ दिस सेम कॉर्ड will make an angle in the major segment which is RTQ. तो this RTQ will be equal to x. ठीक है, तो हमें TRQ चाहिए था। अच्छा वो TRQ तो अभी नहीं पता, ये x हो जाएगा। अच्छी बात है। अब अगर ये x है, ये x है, तो what we can do is like यार उतना करने की जरूरत नहीं, चलो छोड़ो, इतना करने की जरूरत नहीं, आसान तरीके से बताता हूं। देखो सिंपल ये करो कि यहां से एक टैंजेंट ड्रॉप कर दो। इफ दिस इज अ टैंजेंट तो 90 डिग्री, सॉरी रेडियस ड्रॉप कर दो, टैंजेंट नहीं रेडियस, सॉरी रेडियस ड्रॉप कर दो। तो इफ फ्रॉम हियर इफ यू ड्रॉप रेडियस इट विल बी 90 डिग्री, फ्रॉम हियर इफ यू ड्रॉप द रेडियस इट विल बी 90 डिग्री, बिकॉज रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट। तो ये OQ परपेंडिकुलर हो गया, OT परपेंडिकुलर हो गया, तो ये 90-90 आ गया। और यू विल बी एबल टू सी दैट OTPQ इज अ क्वाड्रिलैटरल। OTPQ क्या है? क्वाड्रिलैटरल। In this quadrilateral, you can do the angle sum property, which says that sum of the angles of a quadrilateral is 360. So you already have 90, 90 and 70. So remaining angle is this. You will be very much easily able to find this. So ये I guess 110 आना चाहिए, 110 degree. Now if this is 110 degree, angle made by any segment at the center is twice of the angle made by the same segment over any part of the circle. मतलब सिंपली सरल भाषा में ये कह सकता हूं कि ये अगर 110 है तो ये इसका हाफ होता है। ये एक थ्योरम है सर्कल्स में, तो ये इसका हाफ क्या होगा? दिस विल बी 55 डिग्री। तो वेरी इजीली यू विल बी एबल टू फाइंड TRQ जो कि 55 डिग्री है। तो दिस इज 55 डिग्री TRQ। समझ में आ गया क्या? आसानी से, काफी आसानी से हो गया। वो उतना लंबा ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम जानने की जरूरत नहीं थी। वैसे जान लिए तो अच्छी बात है, तुम्हारे लिए काम देगा। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड, एंड इफ यू ऑल अंडरस्टूड लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है शायद, नहीं, अच्छा काइंड ऑफ सेम फिगर है। दिस क्वेश्चन इज आस्किंग इन फिगर PQ इज अ कॉर्ड, ओके, ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, ओके। द tangents at P and Q intersect at point T. Find the length of TP, ओके। तो वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द टैंजेंट। अब देखो कैसे फाइंड करेंगे। तो एक बात समझो, एक बात ये समझोगे कि PQ कहाँ गया? PQ, हाँ, PQ इज गिवन 16। अगर ये 16 है और ये 90 डिग्री है, से फॉर एग्जाम्पल मैं इस फिगर को बाहर बना लूं क्या? बना लेता हूं। देखो सर्कल, ये टैंजेंट और ऐसा कुछ सिचुएशन, यहां से परपेंडिकुलर, यहां से परपेंडिकुलर, और ये इसको ज्वाइन करता हुआ, और यहां से ये इसको ज्वाइन करता हुआ। तो दिस विल बी 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री क्यों होगा? ये प्रूफ हो जाता है जब आप इन दोनों ट्रायंगल को इक्वल लेके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे, तो ये प्रूफ हो जाता है कि ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब मैं वो प्रूफ में नहीं जा रहा हूं, अभी बस जान लो कि ये 90 डिग्री होता है। अब आगे बढ़ते हैं। O, ये पॉइंट का नाम है, दिस इज R, दिस इज P, दिस इज T एंड दिस इज Q। तो मुझे चाहिए लेंथ TP का। देखो फाइंड करते हैं। OR इज गिवन, रेडियस इज गिवन 10,
फिर पी क्यू ऑफ लेंथ ए 16 सेंटीमीटर. सो इफ इट इज 16 तो ये आधा आधा हो जाएगा, बिकॉज इफ इट इज परपेंडिकुलर तो दिस विल बिकम हाफ एंड हाफ. सो 8 and 8. तो अगर ये 8 हो गया और ये 10 है, ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस लगा के ये वाला पार्ट निकाल लोगे क्या? पाइथागोरस लगा के ये ओ आर निकाल लोगे क्या? ओ आर बड़े आराम से पाइथागोरस से आ जाएगा 6 विल बी ओ आर वैल्यू. ठीक है, तो लेंथ ऑफ टीपी चाहिए हमें. टीपी के लिए मेरे को क्या चाहिए होगा? टीपी के लिए मेरे को चाहिए, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री है. ट्राई टू सी कि आई कैन मेक ट्रायंगल OPR सिमिलर टू हियर दिस बिग ट्रायंगल OTP समवॉट. कैसे बनाओगे? देखो, ध्यान से देखना. लेट अस अज्यूम दैट दिस एंगल, लेट अस अज्यूम दिस एंगल, लेट अस अज्यूम दिस एंगल टू बी x. इस छोटे से एंगल से, छोटू से एंगल का ये जो ROP है, इसको x माना मैंने. इफ दिस इज x, यू विल बी एबल टू फाइंड दैट दिस इज 90 minus x. देखो ध्यान से, ट्रायंगल TPO की बात हो रही है. TPO, एक एंगल अगर x होता है तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एंगल इज 90 minus x. अगर नहीं आता, इफ यू डोंट नो, डू द एंगल सम प्रॉपर्टी. ओके, नाउ दिस इज 90 minus x, दिस इज x, फाइन. Now this is also 90 degree. So if this is 90 degree, you will be able to find this angle, again angle sum property, and this angle will come as equal to x. तो मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं कहना ये चाहता हूं कि छोटे वाले ट्रायंगल को ले लो, ट्रायंगल ORP, ट्रायंगल ORP, ध्यान से देखना, ORP. इन ट्रायंगल ORP व्हाट इज O? X. और इस बड़े वाले ट्रायंगल में, इस बड़े वाले ट्रायंगल में O कहां है? दैट इज ऑल्सो O, X, सॉरी O. सो दिस इज सिमिलर टू ट्रायंगल O, सिमिलर टू ट्रायंगल O. ORP, OR, second is R. So OR, R is 90 degree. So in this big triangle OP, P is 90 degree. So this is OPT. देखो, अगर नहीं समझ में आया हो तो दोबारा से समझ लेना, एक बार वीडियो रिवाइंड करके. एंगल O इक्वल है, एंगल R 90 डिग्री, so they are equal. So two angles are equal, that is why they will be similar by angle property, angle similarity. अगर इतनी बात समझ में आ गई कि दोनों सिमिलर हैं, तो बड़े आराम से इनका साइड रेशियोज लिख दोगे. साइड रेशियो बताओ. आई एम राइटिंग OR अपॉन OP इक्वल्स टू, दूसरा क्या लिखूं? RP अपॉन OR की जरूरत हाँ है, OR अपॉन OP, ठीक है. RP अपॉन PT. देखो, इतने में काम बन जाएगा, बिकॉज हमें PT का लेंथ निकालना है एंड दीज 3 लेंथ आर नोन. सो व्हाट इज OR? जस्ट बता दो जल्दी से, OR क्या है? तो OR देखो, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. OR यहां से फिगर से देख लो. OR इज दिस लेंथ 6, तो यहां लिख रहा हूं 6, यहां पे लिख रहा हूं 6 इज अपॉन OP का लेंथ क्या है? OP लेंथ इज गिवन 10 इक्वल्स टू PR का लेंथ कहां गया? PR is, we have found this PR 8, तो PR is 8 divided by PT का लेंथ. So what is the PT length? PT length is PT, I don't know this. हाँ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 80/60, तो PT का लेंथ आ जाएगा. PT is 80/6. अब ये इसको आगे तो तुम निकाल ही लोगे. 80/6 is the PT length. So length of the PT will be 80/6. ये समझ आया क्या? OR, OP, RP, PT. यस, ये समझ आया क्या? जल्दी से बता दो. ये लाइव चैट में जरूर लिख देना समझ आया कि नहीं. थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन कर रहा हूं, तो इसको समझने की कोशिश करना प्लीज. ठीक है, ओके, कूल. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. नेक्स्ट, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन क्या कहता है? ये क्वेश्चन कहता है टेंजेंट मेकिंग एन एंगल 120 डिग्री with each other drawn to a circle of radius 6 centimeter. Find the length of tangent. So figure is not given. Let's make the figure. Circle and 2 tangents. अरे ये आज फिगर गंदा कैसे बन रहा है? देखो, circle and 2 tangents. So this is tangent 1 and this is tangent 2. Okay. So they are making an angle 120 degree with each other. So these tangents, tangent T, P and TQ. This is the center.
So from center we will draw the perpendicular, isn't it? So this is 90 degree, 90 degree. Fine. Radius is 6 centimeter. Find the length of tangent. Radius is 6 centimeter. ठीक है? तो from here I joined it. Now when I have joined it, so you will be again be able to find क्या find कर पाओगे? ये 60 डिग्री है तो दिस सॉरी 120 है, सो दिस विल बी 60 एंड दिस विल बी ऑल्सो 60. तो दोनों 60 डिग्री हो गए. नाउ देखो इट इज क्वाइट इजी इफ यू विल अप्लाई सम ट्रिगोनोमेट्री. सो ट्रिगोनोमेट्री में ये काफी इजी हो जाएगा. देखो नीचे वाले ट्रायंगल को ले लेते हैं, ओ टी क्यू. सो जस्ट टेक दिस ट्रायंगल ओ टी एंड क्यू. सो इफ यू हैव टेकन दिस ट्रायंगल ओ टी क्यू, दिस इज टी इज 60 डिग्री एंड दिस इज ओ क्यू. OQ is the radius, so this is 6. बड़े आराम से एक बार में TQ का लेंथ आ जाएगा. You'll write this TQ I don't know, so this is base. So in front of this perpendicular, so we will use tan 60. So tan 60 is perpendicular upon base. Base is TQ. And what is the value of tan 60? So tan 60 I guess तुम्हें पता होगा. Tan 60 is √3. So just do the cross multiplication. इसको उधर उसको इधर, तो TQ is equals to 6 upon √3. और 6 अपॉन √3 को सॉल्व करोगे तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट विल बी 2√3. तो वैल्यू आ गया TQ का 2√3. आराम से आ जाएगा, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है. हाँ, ज्योमेट्री के मेथड से जाओगे तो थोड़ा लंबा लगेगा. ठीक है. होप यू ऑल अंडरस्टूड. लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. डायरेक्ट पढ़ते हैं. अच्छा नहीं, बता देते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. सी इस क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है. PQ इज सच दैट, अच्छा कुछ तो कह रहा है. PQ is a chord of length 8 centimeter. ठीक है. Radius 5. Okay. Tangents P and Q intersect. Okay. Tangents at P and Q intersect at point T. Find the length of TP. ठीक है. फिर से वैसे क्वेश्चन कुछ लेंथ ऑफ tangent बताना है. तो देखो भाई कैसे बताओगे. 8 सेंटीमीटर. अच्छी बात. देखो एक बात तो पक्की है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो TP is going to be equal to TQ because from an external point length of tangent is always equal. अच्छा है. तो if length of tangent is equal, do you know this property कि from an external point, नहीं लेकिन वो एंगल में डिपेंड करता है, वो हमेशा नहीं होगा. ठीक है. देखो ड्रॉ करते हैं. यहां से अगर इसे ज्वाइन किया तो ये भी रेडियस के इक्वल होगा. अच्छा, फायदा सर्कल रेडियस 5, ये 8. तो एक बात बताओ कि इसे अगर ज्वाइन कर दूं, यहां से इसको ज्वाइन कर देते हैं, तो आई गेस मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में यूज किया था कि ये इसको यहां से ज्वाइन करोगे तो ये 90 डिग्री आता है. ठीक है. एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये होता है, ये एक थ्योरम है, पढ़ लेना उसको. तो ये 90 डिग्री होता है. तो अगर ये 90 डिग्री होता है तो ये 8 को दो पार्ट में बांट देगा. It will divide it into 2 equal parts. 2 equal part मतलब ये 4 हो जाएगा and this will be also 4. Now you have 5, you have 4 and you have a 90 degree. तो you will be able to find this वाला angle, मतलब this वाला side. ये side तुम्हारा 3 आ जाएगा. ये जो छोटू सा side है. ये डायग्राम थोड़ा सा बेकार टाइप का बना हुआ है. I completely agree. लेकिन अभी थोड़ा सा मैनेज कर लो. ये 3 होगा. This black portion, small black portion. O2, let's name it. क्या नाम डाल दूँ? बताओ. OR डाल देते हैं एज वी डिड इन द प्रीवियस क्वेश्चन. तो OR इज 3. अब एक बात समझो, यहां पे अगेन यू विल बी एबल टू अप्लाई दैट सिमिलैरिटी वाला कंडीशन. बिलीव मी, यू विल बी एबल टू अप्लाई सिमिलैरिटी वाला कंडीशन. सिमिलैरिटी कंडीशन जैसे ही लगाओगे यू विल बी एबल टू फाइंड PT. मैं करके बता दूं क्या? चलो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अभी दोबारा से समझाऊंगा नहीं, प्रीवियस क्वेश्चन में समझाया था. सिमिलैरिटी लिख दे रहा हूं बस. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ORP, triangle ORP similar to ORP is similar to OPT similar to OPT. तो एक बार अगर ऐसा लिख दिया तो अब बस साइड के लेंथ लिख दो. OR by OP equals to RP divided by PT. तो we have to find the length of PT. सो OR की वैल्यू पता है क्या? हाँ पता है, 5 डिवाइडेड बाय OP. ये सेम क्वेश्चन तो नहीं हो गया? OP नहीं, OR की लेंथ 5 नहीं है,
OR का लेंथ इज 3 and OP is 5 equals to RP is 4 upon PT I don't know, तो PT will be able to find. तो इसको उधर उसको उधर, यार ये सेम ही क्वेश्चन हो गया आई गेस. वहाँ पे 80/6 आया था, यहाँ पे 20/3 या 40/6 आया था शायद, ये आ गया 20/3 का वैल्यू. आई गेस सेम क्वेश्चन हो गया शायद, थोड़ा सा चेंज करके, पता नहीं. तो ये समझ आया क्या? अगर नहीं मतलब जिनके लिए रिपीट हुआ उनके लिए अच्छा ही हो गया, मतलब दोबारा समझ में आ गया होगा. बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेट मी टेल यू, एंड इट हैज अ वेरी गुड प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग इन योर बोर्ड एग्जाम्स ऑल्सो. तो डोंट मिस दिस क्वेश्चन, ठीक है. चलो लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट पार्ट. हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, उसके पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना. आगे बढ़ते हैं, ये अगला क्वेश्चन है. क्या कहता है क्वेश्चन? प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल. अच्छी बात है, चलो प्रूफ करते हैं. तो क्वेश्चन इज सेइंग कि सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, तो देयर इज अ सर्कल, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, हाँ ठीक है. तो दिस विल बी द क्वाड्रिलेटरल. तो दिस इज गोइंग टू बी, यार तुम अलग बुरा मान जाते हो. अरे हाँ, दिस इज द सिचुएशन, ठीक है. ये हो गया A B C D, दिस इज सेंटर O. So now what you have to do, if you will draw a perpendicular here and if you will draw a perpendicular here, 90 degree, and let's join this line. तो just now I have said कि these two triangles are going to be congruent. ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. कैसे हो जाएंगे? देखो एक्सटर्नल पॉइंट से, लेट्स नेम इट P, this will be Q, this will be R and this will be S. So AS is going to be equal to AP, external point से tangent. Then OS is going to be equal to OP, radius, and OA is equal to OA, common side. तो दोनों ट्रायंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गए. कॉन्ग्रुएंट होते ही you know this angle will be x and hence this angle, if I assume, then this angle is also x. दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे. Both the angles will be equal. Now once both the angles are equal, so we can do the same process in all the triangles. So this angle will be y, this angle is also going to be y. Then if I do it here, if I join this like this, so if this is z, this is also z, और यहाँ पे भी ज्वाइन कर दो इसको. सो इफ दिस इज P, दिस इज ऑल्सो P. और W ले लो ना, P क्यों लेते हैं, W ले लो, W, देन दिस इज W. तो देखो ऑल टुगेदर हाउ मेनी एंगल्स हैव यू गॉट? यू हैव गॉट 2x, 2y, 2z, 2w. सो आई जस्ट राइट इट हियर, इट्स 2w प्लस 2x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल्स टू 180. तो सारे में से कॉमन क्या आ गया? 2. तो इट विल बी W, नहीं सॉरी 180 नहीं यार, 360. सेंट्रल एंगल है ना, सेंटर पे एंगल बन रहा है, तो सेंटर पे एंगल बन रहा है, तो इट विल बी इक्वल टू 360. नाउ 2 विल बी टेकन कॉमन एंड इट विल बी कैंसिल्ड बाय 360. सो यू हैव W प्लस x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब एक बात पे ध्यान दो, वो ध्यान ये दो, आर यू एबल टू सी दैट x प्लस y is angle AOB. AOB. This is angle x plus y. तो x plus y के लिए I will write angle AOB plus W plus z. So are you able to find that W plus z is angle BOC? Angle BOC, isn't it? Equals to 180 degree. तो यही तो क्वेश्चन कह रहा था कि प्रूव दैट अपोजिट साइड्स AB एंड BC CD, अरे नाम गलत लिख दिया, सॉरी, इट्स नॉट BOC, इट्स COD. ये ध्यान नहीं दिया, ये COD है, COD, सॉरी. सो ये DOC कर लो इसको, ये DOC हो गया. AOB प्लस DOC.
तो AOB प्लस DOC 180 डिग्री, और यही प्रूव करना था, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल subtend supplementary angles. Supplementary angles means 180 degree. Sum of angles is 180 degree. This is supplementary angle at the center of the circle. तो center of the circle पे ये 180 degree subtend कर रहे हैं. So this is the complete angle. AOB plus DOC equals to 180 degree. समझ में आया क्या? आई गेस ये आ गया होगा, ज्यादा टफ नहीं था. बट हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेट मी टेल यू, एग्जाम में आ सकता है एंड इट विल बी अ प्रीडोमिनेटली 3 मार्कर क्वेश्चन, 3 मार्कर या 4 मार्कर. तो अगर समझ जाओगे तो बड़े आराम से कर लोगे. सो बट 3 मार्कर्स में आएगा. सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. हियर इज द लास्ट क्वेश्चन परहैप्स. यस, टुडेज लास्ट क्वेश्चन. अरे हाँ क्या कहता है क्वेश्चन? इफ द एरिया ऑफ ABC इज 121, नहीं 21, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ABBC CA. अच्छी बात है. हाँ देखो, आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. इसमें सबसे पहला काम क्या करो, ये 4 दिया हुआ है, सो दिस विल बी ऑल्सो 4 बिकॉज BD विल बी इक्वल टू BF. ये दिस इज गिवन 3, सो दिस इज ऑल्सो 3. आई डोंट नो दिस साइड, सो आई विल टेक इट एज X, सो दिस विल बी ऑल्सो X. ये इतना समझ में आ गया होगा. कूल. अब सेकेंड स्टेप तुम्हारा क्या होना चाहिए? जस्ट join all the sides OB, OC, OA. So altogether you have divided ABC into 3 smaller triangles, that is OAB, OBC and OCA. अब just pay attention. If you will join O to F, अगर O से F को join कर दोगे तो this is 90 degree because radius is always perpendicular to the tangent. तो यूजिंग OF I will be able to find the area of triangle OAB. देखो, एरिया ट्रायंगल OAB, एरिया ट्रायंगल OAB क्या हुआ? हाफ इंटू बेस, बेस इज 4 प्लस एक्स इंटू 4 प्लस एक्स इंटू हाइट, हाइट इज OF, OF इज 2 सेंटीमीटर, OF इज 2 सेंटीमीटर. ये आ गया. Just by using the same method you will be able to find the area of OBC. हाफ इंटू बेस क्या हो गया? 4 प्लस 3 इंटू हाइट 2. एंड सिमिलरली OCA, OCA ये क्या हो गया? हाफ इंटू बेस, बेस क्या हो गया? 3 प्लस एक्स इंटू हाइट 2. अब अगर मैं इन तीनों एरिया को ऐड कर दूं, इफ आई सिंपली ऐड देम, क्या हो गया? सिंपली ऐड देम, तो एरिया ट्रायंगल ABC नहीं मिल जाएगा क्या? एरिया ट्रायंगल ABC नहीं मिल जाएगा क्या? OAB प्लस OBC प्लस OCA, 3 छोटे छोटे ट्रायंगल्स, एरिया ट्रायंगल ABC. एरिया ट्रायंगल ABC क्या है? गिवन है 21 गिवन है, इज इक्वल टू, ये तीनों का सम करना होगा, तो इन तीनों का सम बहुत आराम से निकल जाएगा. देखो सब में ये कैंसिल हो जा रहा है. सो व्हाट यू हैव टू जस्ट सिंपली ऐड द साइड्स. 4 प्लस एक्स प्लस 4 प्लस 3 प्लस 3 प्लस एक्स. देखो 4 2 टाइम्स है, x 2 टाइम्स है, 3 भी 2 टाइम्स है, तो सारे 2 बार है. तो जस्ट आई एम राइटिंग 2 टाइम्स ऑफ 4 प्लस 3 प्लस एक्स. सिंपली सॉल्व कर दो. 21 इज इक्वल्स टू 4 3 7 प्लस एक्स. तो आई एम राइटिंग हियर 21 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 7 प्लस एक्स विच इज नथिंग बट 14 प्लस 2x. इसको उधर उधर ले जाओ, सॉल्व कर देना, x की वैल्यू आ जाएगी 7/2. x you will get 7/2. आंसर आ गया, x आ गया, तो लेंथ ऑफ द साइड्स you will get it very easily. समझ आया क्या? चैट में जरूर लिखो, लाइव चैट में, कि और कमेंट जरूर कर देना हाँ कि समझ आया, कैसा फील हुआ. सो जस्ट लेट मी नो, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड एवरीथिंग और नॉट? एंड विथ दिस आई गेस इट्स, और कुछ है क्या? नहीं, इट्स टाइम टू से गुड बाय. सो गाइज, इट वॉज रियली अगेन अ फैंटास्टिक सेशन. कमेंट जरूर करना ताकि अगले सेशन में फिर से कमेंट पढ़ के खुश हो जाऊं और तुम लोगों के साथ फिर से टाइम बिताऊं. सो थैंक यू वेरी मच. इट वॉज रियली अ फैंटास्टिक सेशन वंस अगेन. आई विल बी अगेन मीटिंग यू गाइज ऑन मंडे. तो मंडे को फिर से मिलते हैं कमेंट्स के साथ. एंड थैंक यू वेरी मच. दिस इज सर्कल. अब अगला चैप्टर जो हमारा उसमें सीक्वेंस में आ रहा है वही होगा, उसका आपको थंबनेल एंड ऑल द अपडेट्स यू विल गेट इट वेरी सून. ठीक है? थैंक यू, बाय बाय, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन. थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट.